جیزس لائف ٹی وی دیکھنے والے تمام ناظرین کو آج کے پروگرام کے میزبان نکسن ڈینیل کا سلام پہنچے۔ ناظرین، میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں ایک اور پروگرام لے کر حاضر ہوں۔ آج ہم ایک اہم ترین ایشو پر بات کریں گے جو کہ پاکستان بائبل سوسائٹی کے رہنماؤں کی ایک حرکت سے متعلق ہے جس نے مسیحیوں کی نہایت دل آزاری کی ہے۔ اس پروگرام میں آج کے مہمانوں کا متعارف کروانا اعزاز کی بات سمجھتا ہوں۔ ہمارے ساتھ لاہور سے مذہبی عالم جناب پادری ضیاء المسیح صاحب تشریف فرما ہے، اور دوسرے ہمارے عام شخصیت سویڈن سے پادری نوید ملک صاحب ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حیدرآباد سے جیزس لائف ٹی وی کے چیئرمین مقبول صادق کھوکھر صاحب تشریف فرما ہے۔ وقت اجازت نہیں دیتا کہ ان شخصیات سے متعلق مزید کہوں، اگرچہ کہنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ آپ ان تینوں شخصیات سے واقف ہیں۔ آپ تینوں عظیم شخصیات جن پر پاکستانی اور بیرون ملک پاکستانی مسیحیوں کا فخر ہے، ممنون ہوں کہ جیزس لائف ٹیلی ویژن کے اس پروگرام میں اپنا قیمتی ترین وقت نکال کر تشریف لائے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج کا پروگرام ہم سب کے لیے برکت اور ایمان کی مضبوطی کا سبب ہوگا۔ سب سے پہلے میں مخاطب ہوں جناب پادری ضیاء المسیح صاحب سے۔ پادری صاحب، بائبل سوسائٹی کے حوالے سے جو اصل ایشو ہے، کیا اس پر ذرا پھر سے روشنی ڈالیں گے اور ذرا بتائیں کہ یہ سلسلہ کب سے چل رہا ہوگا؟ ظاہر ہے یہ کتب ایک ہی دن میں یا 2 دن میں منظر عام پر تو نہیں آئی ہوگی، تو پاسٹر صاحب آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل، میں شکر گزار ہوں تمام پاسٹر صاحبان کا اور آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے اس بات کا بوجھ لیا اور آپ نے اس ضرورت کو محسوس کیا کہ تمام خادمین کو اکٹھا ایک پلیٹ فارم پہ اور ان سے بات کی جائے، اور آپ نے حمایت کا بھی دہانی کرائی، اس کے لیے بھی شکر گزار ہیں۔ پاسٹر نوید ملک صاحب بھی موجود ہیں، اور وہ بھی آپ مسیحی ایمان کے بہت بڑے دائی ہیں، اور ان کی موجودگی بھی یہاں پر خوش آئین ہے۔ اور آپ نے پوچھا کہ یہ معاملہ سب کب سے ہے، تو دیکھیں یہ کتاب تو 2013 میں پرنٹ ہوئی تھی، اور اس کی تقریب رونمائی جو تھی وہ شاید اگر میں غلط نہیں ہوں تو میرے ناقص علم کے مطابق پہلی دفعہ تھی کہ وہ پی سی ہوٹل میں ہوئی، اور اس میں ڈنر بھی دیا گیا حاضرین کو، اور یہ کافی مہنگی تقریب تھی، لیکن ہماری نظر تو اس پہ نہیں پڑی کیونکہ ہم اس تقریب میں وہ دعوت ہی مدعو ہی نہیں تھے۔ لیکن جب چونکہ ہم مسیحی ایمان کا دفاع کرتے ہیں اور ملک پاکستان میں ہم نے اس رسم کو جاری کیا ہے کہ ہم مسلمان مناظرین کے ساتھ، مسلم علماء کے ساتھ مسیحی ایمان کا دفاع کرنے کے لیے ان کیمرہ پبلک ڈیبیٹس جو ہیں وہ کرتے ہیں، چاہے ہمیں گجرانوالہ جانے پڑے، چاہے فیصل آباد، چاہے لاہور، چاہے کراچی، ہم جہاں بھی کوئی یہ کہتا ہے کہ میں کرنا چاہتا ہوں ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ لہٰذا جب ان لوگوں نے اس کتاب متدباہ کلام مقدس کے حوالے ہمیں دینا شروع کیے، اور انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں آپ کی بائبل سوسائٹی نے اس کتاب کو چھاپا ہے، اور اس میں یہ لکھا ہے کہ یسوع مسیح کے الفاظ کا کوئی مصدقہ ریکارڈ جو ہے وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، اور اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ بائبل کے جو منشی تھے، منشی ہی لفظ یہاں پر لکھا ہے، منشی تھے، وہ اپنی مرضی سے اس میں جو تھے وہ تحریف کیا کرتے تھے، اور اس میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ اس میں 3 لاکھ جو اختلافات کی غلطیاں ہیں سارے نسخوں میں۔ تو پھر کہاں گئی آپ کی وہ بات کہ بائبل سچی کتاب ہے، بائبل اب تک محفوظ ہم تک پہنچی ہے، اور بائبل میں جو لکھا ہے کہ گھاس مرجھاتی ہے، پھول کملاتا ہے، لیکن خدا کا کلام اب تک قائم رہے گا، اور یسوع کی وہ بات کہاں گئی کہ میرے منہ کی باتیں ٹل نہیں سکتی۔ یہ تو بائبل سوسائٹی اس کا اقرار کر رہی ہے کہ 150 سالہ تقریبات کے موقع پر انہوں نے اس کتاب کی لکھا ہے، خصوصی اشاعت کیا ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ اس کی خصوصی اشاعت یہ دیکھیں، یہ لکھا ہے کہ 150 سالہ تقریبات کے موقع پر یہ ہے خصوصی اشاعت اس کتاب کی جا رہی ہے، پرل کانٹیننٹل دا مال لاہور میں عشائیہ بھی دیا جا رہا ہے، یعنی کہ ڈنر بھی دیا۔ تو پھر ہمیں اس کتاب کی طرف ہماری توجہ گئی، اور ہم نے اس کو خریدا اور اسے پڑھا اور اسے دیکھا، تو ہمارے مطلب ہوش اڑ گئے کہ یہ کیا کیا لکھا ہوا ہے۔ اور اس کو جب ہم نے دیکھا کہ اس میں یہ لکھا کس نے ہے، تو پتہ چلا اس میں
مختلف اسکالرز کے کوئی 12-13 آرٹیکلز جو ہیں انہیں پرنٹ کیا گیا, ان کا ترجمہ کیا گیا, اور اس کتاب کے مصنف کا یہاں پر کوئی نام نہیں ہے, بلکہ دیباچہ میں جو تعارف ہے وہ خود جو ہے جنرل سیکرٹری اینتھنی اعجاز لیمل صاحب کا لکھا ہوا ہے. اور انہوں نے اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ میں نے اس کتاب کو بہت بہترین پایا ہے, اور یہاں پہ لکھا ہے, یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں, میں پڑھ رہا ہوں کہ ہم جو بائبل سیمینار کرتے ہیں ان تمام سیمینارز میں تعلیم دینے کے لیے میں اس کتاب سے مدد لیتا ہوں, جنہیں سن کر لوگوں نے بہت برکت پائی ہے. اکثر سیمینارز کے بعد لوگ مجھ سے یہ ضرور پوچھتے ہیں یہ لیکچرز آپ نے کن کتب سے تیار کیے ہیں, تو میں ہمیشہ اسی کتاب کا ذکر کرتا ہوں. تو یہ دیباچہ جب انہوں نے لکھا اس کا, تو اس کا تعارف لکھا ہوا ہے, تو پھر ہم مطلب جو میں آپ کو بات کر رہا تھا کہ یہ ہم نے پوچھا یہ لکھی کس نے آپ جو جس کے حوالے دے رہے ہیں, تو پتہ چلا کہ یہ تو مختلف لوگوں کی چیزوں کو اکٹھا کر کے بائبل سوسائٹی نے اس پر اپنی مہر ثبت کر کے اس کو بس آگے پروموٹ کر دیا ہے. تو ہم بائبل سوسائٹی سے ہم نے پاسٹر شفیق کمل صاحب نے مجھے رابطہ کیا کہ آپ لاہور میں ہیں تو آپ ضرور بائبل سوسائٹی جائیں. تو میں نے ان سے ٹائم لیا اور انہوں نے بڑی مشکل سے مجھے کہا کہ میرے پاس 20-25 منٹ کا ٹائم ہے, آپ آ جائیں. تو میں گیا, تو لیکن بعد میں جب میں نے بات کی ان سے اور میں نے فوٹو کاپیاں بھی اس کتاب کی دیں کہ جہاں جہاں پہ جو ہے ایسا کیا کہنا چاہیے متنازع بیانات ہیں, متنازع تحریر ہے, تو پہلے تو وہ ڈیفینڈ بھی کرتے رہے کہ نہیں یہ ٹھیک ہے اور کہتے رہے, اور پھر انہوں نے کہا ایسے مسائل تو اور بھی ہیں, تو مطلب انہوں نے اور بھی ایسی باتیں کی, بلکہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اگر اپولوجسٹ ہیں, بائبل کا دفاع کرتے ہیں, تو پھر اور بھی مسائل ہیں ان کا بھی حل کریں. تو میں نے کہا کیا مسائل ہے؟ تو کہنے لگے دیکھیے مصر سے خدا جو تھا قوم بنی اسرائیل کو لے کے آیا, تو اس وقت تو ان سے خدا نے کہا ان سے آپ زیورات لے لو, اور بعد میں وہ زیورات لے کے بھاگ گئے, تو یہ بھی ٹھیک نہیں تھا. تو میں نے کہا کہ آپ بات کر رہے ہیں ایک اپولوجسٹ سے, اور میں ڈبیٹر بھی ہوں, اور یہ باتیں ہم نے میٹرک میں ہی سن لی تھی, آپ کیا بات کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا انہوں نے تو 430 سال کی ان کی مزدوری دینی تھی, یہ مزدوری تو ابھی کچھ بھی نہیں تھی, خدا نے تو شاید ان کا چوتھا حصہ بھی نہیں ان سے ریکور کروایا تھا. تو لہٰذا جب بادشاہ کوئی کر رہے ہو زیادتی, تو پھر اس کا جو حساب ہے وہ بادشاہ ہی کرتے ہیں, تو کیونکہ وہ یسوع خدا بادشاہوں کا بادشاہ ہے, تو اس نے ان کا حساب بھی کیا. تو خیر میرا کہنے کا مطلب ہے کہ وہ کس طرح سے ڈیفینڈ کر رہے تھے. تو پھر انہوں نے اس بات کو نہیں بدلا. ہم نے چیئرمین جو کہ اپنا لیاقت قیصر صاحب ہیں, وہ ایف جی اے کے روئے رواں ہیں, ان سے بھی ملنے کی کوشش کی. میں ان سے ڈائریکٹ تو نہیں مل سکا, لیکن وہ پیپر ان کو بھجوا دیے گئے سارے کے سر یہ مسئلہ چل رہا ہے, آپ اپنی شفقت فرمائیں اور بائبل سوسائٹی والوں سے کانٹیکٹ کریں. لیکن وہ تو نہیں ملے, لیکن طارق وارث صاحب مجھے ملے اور میں انہیں ملا. طارق وارث صاحب ایف جی اے کے پرنسپل ہیں رائٹ ناؤ, اور انہوں نے مجھے کہا کہ یہ بہت غلط ہوا ہے, اور میں ضرور بات کروں گا چیئرمین صاحب سے, بائبل سوسائٹی کے چیئرمین لیاقت قیصر صاحب سے. لیکن اس کے بعد بھی 8 مہینے گزر گئے اور اس پہ کچھ نہ ہوا. اور اس کے بعد نئے جنرل سیکرٹری جناب ناصر صاحب, جب پتہ چلا کہ نئے جنرل سیکرٹری صاحب آ گئے ہیں, تو ان سے بات کی کہ شاید یہ بات سنیں گے اور اس کا اتنا واویلا نہ کرنا پڑے اور یہ بات خاموشی سے حل ہو جائے. لیکن انہوں نے بھی کہا, جیسے کہ شفیق کمل صاحب نے اپنی ویڈیو میں بھی کہا, کہ انہوں نے بھی کہا کہ بھی یہ تو وہی فیصلہ کریں گے. تو پھر اس قدم کو اٹھانا پڑا جس کی وجہ سے آج یہاں میں بیٹھا ہوں. جناب پادری نوید ملک صاحب, آپ خود بھی کئی کتابوں کے مترجم اور مصنف ہیں, اس حوالے سے متعلق آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے میں خداوند کا اور اس کے بعد جیزس لائف ٹیلی ویژن کا ممنون ہوں, جس نے مجھے مدعو کیا کہ اس پلیٹ فارم سے تھوڑی دیر کے لیے خدا کے لوگوں کے ساتھ مل کر بات کرنے والا ہوں. اور میرے لیے کل جب جناب محترم شفیق کمل صاحب کے ذریعہ سے یہ ویڈیو مجھے ملی, آج تک پتہ نہیں کتنے دوستوں نے وہ ویڈیوز فارورڈ کی ہیں مجھے, اور میں ہر ایک کو کہتا ہوں میں دیکھ چکا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف شفیق کمل صاحب بلکہ محترم پادری ضیاء المسیح صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, اور انہوں نے بھی جیسے ابھی ذکر خیر فرمایا کہ اصل حقیقت کیا ہے. اور جب میں نے خود اس ویڈیو کو دیکھا اور شفیق صاحب جو تذکرہ کر رہے تھے کہ بائبل سوسائٹی نے کیا کیا, ایون لیاقت قیصر صاحب کی بھی عدم دلچسپی
اور اس کے بعد لیمول صاحب نے جو کچھ بھی یعنی کردار ادا کیا ریسپانس دینے میں، جو ابھی تک کوئی پازیٹیو ریسپانس نہیں ہے، اس کی وجہ سے یہ دھچکا لگا ہے. اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ میں سوچتا ہوں کہ تمام اہل کلیسا کو اس بڑے عجیب سی حرکت کے سبب سے بڑا دھچکا لگا ہے. سبب یہ ہے کہ ہم آلریڈی جو غیر مسیحی لوگوں میں کام کرتے ہیں، بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جن پر ہم آلریڈی ان پر بات کرتے اور کلیریفیکیشنز دیتے ہیں. لیکن اب وہی بات کہ اپنے گھر سے ہی اٹھ کر کوئی بات کرنا شروع کر دے، اور وہ بھی خدا کے کلام کے مطابق، خدا کے کلام کو بنیاد بناتے ہوئے، تو پھر غیر مسیحوں کو جیسے ابھی محترم پادری صاحب نے بتایا ہے جواز مل جائے گا. وہ ہماری ہی کتابیں اٹھا کر ہمیں دکھائیں گے کہ یہ دیکھو آپ کے عالموں نے کیا لکھا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگرچہ 2013 میں یہ کتاب یا یہ تینوں کتب اس عرصے میں تیار ہوئی ہے، اور اس وقت سے لے کر آج تک جیسا 8 مہینے پہلے پادری صاحب نے بھی ان سے بات کی ہے اور انہوں نے کسی طرح کے رد عمل کا اظہار نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے وہ اپنی جگہ پر ڈٹے ہوئے ہیں. میں شخصی طور پر یہ کہوں گا کہ بائبل مقدس میں عہد عتیق میں بھی لکھا ہے اور مسیح خداوند نے بھی بذات خود کہا کہ میری گواہی اور ہیں جو دیتے ہیں، کتاب مقدس بھی، یوحنا بھی وغیرہ وغیرہ. تو ضیاء صاحب نے ان کتب کو پڑھا، جناب شفیق صاحب نے ان کتب کو پڑھا، اور لاہور میں ایک اور عالم ہیں ٹونی ولیم صاحب، میری شخصی طور پر ان سے اتنی زیادہ بات نہیں لیکن ان کے دولت قدے پر مجھے جانے کا ایک دفعہ اتفاق ہوا ہے. میں سوچتا ہوں کہ کیوں نہ وہ بھی، چونکہ ہبریو اور گریک کو اچھی طرح سے، عبرانی کو خاص کر وہ جانتے ہیں، اور اگر ان کی نظروں سے بھی یہ کتابیں گزر جائیں تو اس کے بعد جیسا محترم شفیق صاحب بات کر رہے تھے کہ اس کیس کو لے کر آگے بڑھا جا سکتا ہے اگر وہ اپنی اس حرکت کا اقرار کر کے قوم سے تحریری طور پر پریس کانفرنس کے ذریعہ معافی نہ مانگیں. تو میں سوچتا ہوں کہ اگر ایک آدھ بندہ اور بھی، یعنی شفیق صاحب کے، ضیاء صاحب کے کمنٹس پتھر پر لکیر ہیں، ہم ان کی ریسپیکٹ کرتے ہیں، ان کمنٹس کی ریسپیکٹ کرتے ہیں. انہوں نے ایسے ہی یہ باتیں نہیں کی ہے، انہوں نے تحقیق کی ہے اور دیکھا ہے، کتابوں کو پڑھا ہے، تب یہ بات وہ منظر عام پر لائے ہیں. اور ویسے ہو سکتا ہے ضیاء صاحب بتا پائیں کہ شاید ٹونی ولیم صاحب نے آلریڈی ان کتب کو دیکھا ہو یا نہیں دیکھا. شفیق صاحب نے آلریڈی کہہ دیا ہے کہ ویسے بھی پڑھنے کا رجحان بہت کم ہو گیا ہے، اور میں اس بات کا بالکل قائل ہوں اور تائید ہوں کہ اتنے عرصے میں ان کتب کو اس طور پر نہیں پڑھا گیا. یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے. ایک میرے بھائی لاہور سے ہی ہیں، وہ میرے قریب رہتے ہیں یہاں سویڈن میں، اور کل انہوں نے کہا کہ بھائی جی وہ آپ نے ویڈیو دیکھی؟ میں نے کہا دیکھی. کہنے لگے یہ کتاب جس کا وہ ذکر کرتے ہیں نا، میں جب پنجاب گیا تھا تو وہاں سے لے کر آیا ہوں، میرے گھر پہ پڑی ہے لیکن پڑی ہی ہے. یعنی انہوں نے کوشش نہیں ہو پائی، یعنی مصروفیات یا کوئی چندہ وجوہ ہوتی ہیں کہ وہ دیکھ نہیں پائے. اور پھر جب پیجز ان کو دکھائے گئے شفیق صاحب کی ویڈیو سے، انہوں نے ان پیجز کو دیکھا اور پھر دیکھا کہ واقعی وہ باتیں اسی طرح ہی ہیں. میں سوچتا ہوں کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا جو بائبل سوسائٹی نے کیا. اس کے پیچھے کیا موقف تھا ان کا، کیا ریزن تھا، کون لوگ تھے اس کے پیچھے، شاید وقت آنے پر اس کا بہتر طریقہ سے پتہ چل سکے. لیکن جہاں تک میرا پرسنلی رائے خیال ہے، it is so bad. جناب محترم پادری ضیاء المسیح صاحب، جب آپ کو اس ایشو سے متعلق معلوم ہوا تو آپ نے کیا محسوس کیا، اور کیا آپ نے بھی کوئی اقدام اٹھایا؟ ابھی بھی آپ کو جو میرے فیس بک پیج پہ یہی ہائی لائٹ کیے ہوئے پیپروں کی تصویریں مل رہی ہیں، اور میں نے ہائی لائٹ کیا، اور یہ جو میں نے 2 پڑھی ہیں یہ تو بہت کم ہے، یہ تو صرف 2 میں نے ان میں سے پڑھا ہے. اور یہ اتنا مطلب اس سے بھی برا یہاں پر لکھا گیا ہے. یہاں پر یہ دیکھیے صفحہ نمبر 121 میں لکھا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ سہون غلطی کرنے کے علاوہ بعض اوقات ارادتاً تبدیلیاں بھی کر دیتے تھے، صرف رفتہ رفتہ ہی کہیں دوسری صدی میں
मसीही इन तहरीरों को पाक नविश्ते समझने लगे। शुरू में वो कह रहे हैं कि शुरू में तो ये पाक नविश्ते थे ही नहीं, और ये बाइबल सोसाइटी आपकी बयान कर रही है और 150 साल तकरीबात के मौके पर, तो लिहाजा जाहिर है हमें इस बात पे बहुत गुस्सा आया। और उस दिन भी जो अपना एंथनी एजाज लैम्बल साहब से, वो मुझे कह रहे थे आप बहुत जज्बाती हो रहे हैं, तो मैंने उन्हें कहा था सर हमें आपसे कोई इशू नहीं है, और ये बाइबल आपकी नहीं है, ये हम सब की है, और इस पर अगर तो आप कह रहे हैं इसमें मसाइल हैं तो फिर वाकई बाइबल सोसाइटी को बंद कर दें और या किसी और डिनोमिनेशन के हवाले इसको कर दें, और अगर आप इसको नहीं संभाल सकते। और लिहाजा टोनी विलियम साहब का पूछ रहे थे अभी नवीद मलिक साहब, तो टोनी विलियम साहब ने कोई ऐसी बात किसी फोरम पे की नहीं, जो कि उनका अपना यूट्यूब चैनल है और उसे वो मैं समझता हूँ हर दूसरे तीसरे दिन अपडेट करते हैं, लेकिन उन्होंने कोई इसके मुतालिक बात की नहीं है जो हम आपको रेफरेंस कर सकें कि उन्होंने की है या उन्होंने पढ़ा है। लेकिन हमने तो वो पढ़ा, उसके निशान लगाकर मैं जब ये दूसरी दफ़ा मिला हूँ जनाब मोहतरम अपना एंथनी एजाज लैम्बल साहब से, तो मैंने उनके ऑफिस में बैठ के फिर से उन्हें कहा अप्रैल के एंड में, ये जो अप्रैल गुजरा है, तो मैंने कहा सर वो मैंने बात की थी, तो उन्होंने कहा कि आप मुझे वो तस्वीरें दोबारा से व्हाट्सएप करें। यानी उस दिन तो मैंने फोटोकॉपी दी थी, इस दफ़ा मैंने उन्हें वो वैसे भेजी, तो आप यकीन जाने उन्होंने वो खोल के भी नहीं देखी और अभी तक नहीं देखी। तो यानी कि ये हफ्ता डेढ़ गुजर गया, यानी कि वो कोई भी इस बात में वो कोई सीरियस नहीं है कि ये कोई बड़ी बात हुई है। और हम इसके सफ़ा नंबर तक बताने के लिए तैयार हैं कि भाई कहाँ कहाँ इन्होंने ब्लेंडर मारे हैं और कहाँ कहाँ इन्होंने गुस्ताखाना जो है। अच्छा ये देखिए, अब सफ़ा नंबर 131 में लिखा है मुसलमा मतन, वो बातें सही सही मौजूद नहीं जो नए अहदनामे के मुसन्निफीन ने असल में लिखी थी। कह रहे हैं कि नए अहदनामे के मुसन्निफीन ने जो असल बातें लिखी थी वो तो मादूम ही हो चुकी हैं, और ये लिख रहे हैं और इसको ये प्रिंट कर रहे हैं। ये देखें मैंने हाईलाइट किया हुआ है, हमने इस पे फिर इसकी इच्छी बिच्छी देखी है कि भाई और कितने इसमें बातें जो हैं वो लिखे हैं। और इसमें बाइबल के कातबीन को ये मुंशी लिखते हैं, 129 सफ़े पे लिखा है अक्सर मुंशी अल्फाज छोड़ते नहीं बल्कि बढ़ा देते थे। ये सबसे ऊपर लिखा हुआ है, अक्सर मुंशी बातें छोड़ते नहीं बल्कि बढ़ा देते थे। बाइबल के कातबीन को मुंशी कहा गया, और मैं नहीं समझता कि ये हमारे जो कलीसियाएं हैं ये किस तरह से चुप हैं, बल्कि हमें भी वो कह रहे हैं कि वो बहुत रिसोर्सेज के मालिक लोग हैं, आप उनसे इस तरह से मतलब बात कर रहे हैं, वो आपको कोई नुकसान पहुंचा देंगे, आप पे कोई केस डाल देंगे, और ये है वो है। तो मैं आपकी वसातत से ये सबको पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर हम कभी इस सिलसिले में मर गए तो हमें शहीद के तौर पर याद रखा जाए। मोहतरम जनाब मकबूल साहब, आप क्या समझते हैं कि हम मसीहियों की तरफ से इन रहनुमाओं से मुतालबा होना चाहिए? खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत फतामंद जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो, जितने भी इस वक्त हमें जीएस लाइव टीवी को देख रहे हैं, और मेरे साथ जो बहुत देर हमारे जानी मानी शख्सियत हैं, पास्टर नवीद मलिक साहब और ज़िया मसीह साहब, पास्टर ज़िया मसीह साहब जो लाहौर से हैं, खुदावंद आपके साथ हो। हमें सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पास्टर नवीद कंवल साहब का और पास्टर ज़िया मसीह साहब का, कि जिन्होंने इसको देखा, बड़े गौर से देखा और इसको समझा कि इसके अंदर ये गलती है, क्यों गलती है, कि जिसकी वजह से हमें मुश्किलातों का सामना होता है। और इसके साथ साथ ही एक और बात मैं पास्टर साहब से भी पहले मैं शेयर कर रहा था, पास्टर नवीद मलिक साहब से भी मैं शेयर कर रहा था, कि हमारे जितने भी मौजूदा वक्त के अंदर पास्टर सेबान है, बिशप सेबान है या दीगर खादमीन है, मेरे ज़हन के मुताबिक और मेरी स्टडी के मुताबिक कि वो बाइबल को पढ़ते नहीं है। बाइबल को हमारे खादमीन को, मैं खादमीन के नाम से बोल रहा हूँ, खादमीन बाइबल को कम पढ़ते हैं, बुक्स को कम पढ़ते हैं। वो एक मैसेज के ऊपर ज्यादा तवज्जो करते हैं कि जिस टॉपिक पे मैसेज देना होता है, 2 आयतें बाइबल की उन्होंने याद कर ली, उसी टॉपिक के ऊपर मैसेज दे दिया, इससे ज्यादा वो आगे करते नहीं।
7 साल हो गए, 2013 से लेके अभी तक 7 साल हो गए कि 7 साल के अंदर पाकिस्तान के किसी खादमीन को ये ख्याल नहीं आया कि इसके अंदर ये तब्दीली हुई है या ये चीज बदल, ये हमारे हमारा जो ईमान है उसको ठेस पहुंची है। और इसके ऊपर मेरा अभी मौजूदा वक्त के अंदर तमाम पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर से बान है, बिशप से बान है, फादर से बान है, तमाम से मेरी रिक्वेस्ट है कि खुदारा आप इसको देखें और इसके ऊपर तवज्जो करें और इन बुक्स को आप अच्छे तरीके से पढ़ें और स्टडी करें और हमें भी बताएं कि ये गलत क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमारे ईमान के साथ ये सारी बातें रिलेटेड हैं कि जब ये चीजें पाई जाएंगी तो हम किससे बात कर सकेंगे, हम किसी से बात नहीं कर सकते। तो मैं इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा जो है बात करने का टाइम जो है अपने जो हमारे गेस्ट हैं पास्टर साहिबान, ये हमारे मोतबर हैं, ये ज्यादा हमें बेहतर इस तरीके पे गाइड कर सकते हैं कि ये हमें कैसे करना चाहिए, तो इसकी हमें जरूरत है। थैंक यू निक्सन। जनाब नवीद मलिक साहब, बैरून मुल्क मसीहियों का इस ताल्लुक से क्या रद्द अमल है और आप इस मामले में क्या किरदार अदा कर सकते हैं? मैं समझता हूं कि जितने भी इस दियारे गैर में लोगों ने मुझसे बात की, कुछ समझते हैं तो बात की है उन्होंने, और मैं उनका ममनून हूं कि उनके दिल में मेरे लिए खास मकाम है और मैं उन तमाम के जज्बात की कदर करता हूं। और इसके साथ साथ मैं ये कहूंगा, जैसा आपने पूछा कि उनकी वाकई दिल आजारी हुई है, दिल टूटे हैं, क्योंकि बाइबल सोसाइटी वो जो खुदा के कलाम को बरसों से अशरों से उसको प्रिंट करती चली आ रही है, वो बाइबल मुकद्दस जिसमें लिखा है हर एक सहीफा खुदा के अलहाम से है, मुंशियों के जरिया से नहीं, और फिर नबुवत की कोई बात आदमी की अपनी ख्वाहिश से नहीं हुई, बल्कि आदमी रूह कुद्स की तहरीक से खुदा की तरफ से बोलते थे। तो मैं सोचता हूं कि वो आज अगर ऐसी बात करें तो यकीनन हमारे जिगर पर नादीदनी जख्म लगते हैं। रही बात आपने जो मुझसे कहा कि आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, मैं समझता हूं कि मैं अपने इन भाइयों के साथ खड़ा हूं जो ऑलरेडी स्टैंड ले रहे हैं, क्योंकि जब से मैं मसीह यीशु में आया हूं 30 साल से जायद हो गए हैं, गैर मसीही लोगों के इन सवालात के जवाबात देने के लिए कि बाइबल मुकद्दस मोतबर है और खुदा का कलाम है और जिंदा खुदा, ला तब्दील खुदा है, जिंदगियों को बदलने वाला है। लेकिन अब ओ पंजाबी च कहंदे ने साडी सारी कीती करप्ती ते पानी फिर गया, तो ये दिल तो टूटता है ना। लिहाजा मैं यही कहूंगा कि मैं अपने इन भाइयों के साथ खड़ा हूं, कलम के जरिया भी और अपनी आवाज उठाने में भी, और सबसे बढ़कर दुआ करने में भी कि खुदावंद इन भाइयों को प्रोटेक्ट करे, दफा करे इनका और इनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे, और बाइबल सोसाइटी के रहनुमाहान को खुदावंद होश के नाखून दे और रूह कुद्स की तहरीक से ख्वाब और रोया के जरिया उनसे हम कलाम हो, ताकि वो कौम से मुआफी मांगे, सबसे पहले खुदा से और फिर कौम से, ताकि फिर से हमारी रवाबत बहाल हो सके। जनाब पादरी ज़ियाद मसीह साहब, क्या आप बताएंगे कि कलीसिया पाकिस्तान इस ज़माने में क्या किरदार अदा कर रही है और आपको पाकिस्तानी मसीहियों से क्या तवक्कुआत है? अच्छा, तवक्कुआत की आप बात कर रहे हैं। तवक्कुआत देखें, हमें पूरी कौम ने लब्बैक कहा, एक लफ्ज होता है अरबी में लब्बैक, हमारे मुसलमान भाई बहुत यूज करते हैं, उसका मतलब होता है कि मैं हाजिर हूँ। तो पूरी कौम ने हमें लब्बैक कहा है। आप फेसबुक पर देखें, जब मैंने इन तस्वीरों को अपलोड किया है, उस किताब की तस्वीरों को जो कि हमारे पास साल एक से महफूज थी, तो हमने उन्हें अपलोड किया तो लोगों ने कहा हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। वो कि हमें लोगों ने ये भी कहा है कि जी आप ना करें, लेकिन वो चंद लोग हैं।
हमें सबने कहा है कि हम आपके साथ हैं। दरअसल ये है, बात ये है कि हमें अब ज़रूरत इस बात की है कि हमारे बिशप हज़रात जितनी वेल ऑर्गेनाइज्ड डिनोमिनेशंस हैं, पेंटिकॉस्टल चर्चेस हैं, वो सामने आए और वो बाइबल सोसाइटी से पूछें कि ये किसके अंडर है, क्या किसी एक मिशन के अंदर इसने रहना है, एक डिनोमिनेशन के अंदर रहना है, और इनकी कौन सी कमेटी है जो ये देखती है। एक मिसाल मैं आपको देख रहा हूँ, ये तो एक एक्स्ट्रा से किताब है, ये बाइबल है जिसकी हेडिंग लगाई है, और ये वाज की किताब अभी खुली हुई है, वाज की किताब खुली हुई है आपके सामने। तो इस वाज की किताब पे जो हेडिंग लगाए हैं, जो वहां पे लिखा है कि बातल ही बातल, वाज कहता है बातल ही बातल, सब कुछ बातल है, इंसानों की उस सारी मेहनत से जो वो दुनिया में करते हैं क्या हासिल है, एक पुश जाती है दूसरी आती है। और इसका हेडिंग इन्होंने दिया हुआ है कि जिंदगी बेकार है। और मैंने इनसे कहा जनाब एंथनी एजाज लेमन साहब से कि सर ये क्या हेडिंग दिया है आपने इसको, वाज की किताब के पहले बाब को, कि जिंदगी बेकार है, क्या आप खुदकुशी कर लें, आप हमें खुदकुशी की दावत दे रहे। तो यानी कि आप देखें कि कोई कमेटी है ही नहीं सिरे से जो ये बातें चेक करे। और कौन से हैं लोग, क्या वो क्लर्क हैं, वो पादरी हैं, वो किस, क्या वो अपोलोजिस्ट हैं, वो तकाबली चीजों को समझते हैं, वो इस जिस माशरे में आप रह रहे हैं उसके तकाजों को क्या समझते हैं, हमें तो कोई पता नहीं चल रहा। तो हमारी तक़वा तो बहुत अच्छी है कि हमें उम्मीद है कि सारे चर्च जो है हमारे साथ स्टैंड देंगे और वो इसका साथ देंगे, और वो बाइबल सोसाइटी के मौजूदा ओहदे दौरान और उनकी इस गुस्ताखाना मुजरमाना गफलत, फिर मैं बोलूँगा गुस्ताखाना मुजरमाना गफलत को वो ज़रूर चेक देंगे, और अब से कोई नया लाहे अमल तैयार करेंगे, और इस कमेटी का नए तरीके से अजरा किया जाएगा, और इस कमेटी को सिलेक्ट किया जाएगा ताकि पता चले कि कौन इन बातों को चेक करता है और वो जिम्मेदारी ले। जी, ओवर टू यू। भाई जी, सिर्फ एक बात मैं करना चाह रहा था भाई ज़िया, क्या ये मुमकिन है कि टोनी साहब से बात की जाए ताकि जरा वाकई अब वो देखें इन इश्यूज को कि ये वाकई इसी तरह से हैं, हमें मिलकर आगे बढ़ना है, इस पर कोई स्टेप लेना है, केवल इसके कि हम ज्यादा आगे बढ़े समझ रहे हैं। यानी जैसे हम सोच रहे थे, शफीक साहब कह रहे थे कि मैं कोर्ट तक जाऊंगा, तो अगर उससे पहले अगर टोनी साहब भी उनको देख लें, और पता नहीं अगर आप उनसे राब्ता कर पाए तो। ये बहुत अच्छी सजेशन है आपकी। हमें कोई इशू नहीं है अदालत में जाने का, कोई शौक नहीं है, कोई उसकी कोई पजीर नहीं है। अगर ये कहें कि जी हम इकट्ठे होते हैं कैथोलिक के फलां हाल में सब इकट्ठे होते हैं और हमें भी कोई ईशाइया भी साथ दे दें, चलें, वैसे मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, तो वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं तो सारे मिल बात कर लेते हैं कि भाई ये किसने देखा था इसको। सही जी, तो पास्टर नवीद मलिक साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। ये प्रोग्राम का वक्त काफी हो रहा है, क्यों मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पास्टर साहब, जैसा कि हमारा मजहब इस वक्त बहुत मुश्किल में आ चुका है, जैसा कि गैर मजहब तो पहले से इल्जाम लगाते हैं कि मसीहियों की बाइबल तब्दील हो गया, और अब तो उनको ये भी इल्जाम लगाने का मौका मिल गया कि यीशु मसीह की कही हुई बातें झूठी और नाहक हैं। तो आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? वेल, बात यह है कि हम जो लोग गैर मसीहों के साथ बात करते हैं, हम इन किताबों को कोई अहमियत नहीं देते। ये जो किताबें ऑलरेडी अभी सामने आ रही हैं, कहाँ बाइबल मुकद्दस और कहाँ ये किताबें, ये जो बंदूकी लिखी हुई और तर्जमा की हुई है, हम इस तरह की किताबों को उतनी अहमियत नहीं देते। लेकिन ये जो खुदा का कलाम हमारे हाथों में है, हम इसको ज्यादा अहमियत देते हैं। इसके मुताबिक हम बात करेंगे जब भी कभी कोई करेगा, और माजी में भी इसके मुताबिक बातें करते रहे। बाकी जो कुतुब हैं इल्मी तौर पर तो हमारे इल्म में इजाफा कर सकती है, लेकिन इस तरह की किताबें हमारे वो कहते ने एहो जी सिलाई लाई के अगली भी लोग खड़ाई। तो कहने का मतलब यह है कि हमें बड़े मोहतात अंदाज से खुदा के कलाम को यूज करना है आइंदा के लिए, ताकि हम अपने ईमान का दुरुस्त तरीका से दफा कर सकें। हाँ जी, नवीद मलिक साहब, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि देखिए, इनका काम ही नहीं है ये किताबें लोगों की किताबें उठा के प्रिंट करके उनका तर्जमे करके तो आगे पब्लिश करने का। इनका काम बाइबल को प्रिंट करने का। अगर ये वही करते
तो आज ये गफलत और ये गुस्ताखाना गफलत ना ना हो। होती। जी जी, मुत्तफिक हूँ आपसे मैं, बिल्कुल जी ठीक जी, है। तो पास्टर जियाल मसीह साहब ये बताएं, जब आप उनके पास गए तो आपको उनका क्या जवाब मिला कि जब मुझे आपने उनका बाइबल यही, के बारे इन किताबों के बारे में उनसे बात की? अच्छा नवीर मलिक साहब कभी प्रोग्राम करें आपके, ये हेडिंग जो लगाए हैं ये इसमें क्या क्या हुआ है तो आपको बताएंगे कि यही नहीं। और मैंने उनसे यही बात की, वहां पे उनकी एक किताब पढ़ी थी क्रिसमस के मौजू पर बच्चों के लिए, और मैंने वो भी किताब वहां से पकड़ ली और मैंने कहा मुझे क्रिसमस पे मैं बहुत काम करता रहता हूँ कि मसीह यीशु की पैदाइश हमें मनानी चाहिए, तो मैंने इसलिए इसे बैठे बैठे पकड़ लिया था जब तक कि आपके साथ मेरी मुलाकात होती। तो उसमें लिखा हुआ था कि मत्ती की इंजील का पैदाइश का वाकया और लूका की इंजील का पैदाइश का वाकया मसीह यीशु की पैदाइश के मतलब दोनों सिरे से मुख्तलिफ हैं। तो मैंने उन्हें वो भी दिखा दिया और ये भी दिखाया, और फिर आपको पता ही है कि वो मुतालियाती शायद की बात तो शफीक साहब कर ही चुके हैं, तो मतलब वो फिर भी कहते रहे नहीं मसाइल तो हैं, आप बाइबल के स्टूडेंट हैं, कुछ बातों को आप खंदा पेशानी से लें। मैं कही आप फैसले दे रहे हैं, आप कहें कि हमें बज़ाहिर लगता है, और फिर हम आपको बताएंगे कि मत्ती की इंजील में वो बातें लिखी हैं जो लूका ने नहीं बताई, और लूका ने वो बातें बताई हैं यीशु की पैदाइश के सिलसिले में जो मत्ती ने नहीं की। तो ये चारों गवाह मिलकर एक कहानी को मजबूती बख्शते हैं। और आप कैसी बातें ये किस तरह से आप लिख रहे हैं? तो बात वही है कि नहीं कोई चेक देने वाला नहीं है सर, कोई चेक देने वाला नहीं है और कोई कमेटी नहीं है और मुलाजमीन है, और वो सिर्फ एक जॉब के तौर पर इसको कर रहे हैं। जी जी, तो यहाँ पर मैं जरूर कहूंगा कि जिया साहब हैं, जाशवा असलम साहब हैं, सलेमान साहब हैं, शफीक साहब हैं, और इनके हम खिदमत साथी जो इनकी हम रफाकत में रहते हुए सीख रहे हैं, मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि ये फ्रंट लाइन में होकर लड़ रहे हैं तारीकी की कुव्वतों के खिलाफ। हमारा दुश्मन कोई मुसलमान नहीं है, कोई क्रिश्चियन नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है, इब्लीस हमारा दुश्मन है। और ये वो सिपाही हैं, कमांडोज हैं जो फ्रंट लाइन में होकर उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, और जिनको वो इस्तेमाल करता है उनके सवालों के जवाबात ये रूह और सच्चाई से देने वाले हूं। मैं इनकी सारी खिदमात को सराहता हूं और दाद देता हूं। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये कहूंगा कि बाइबल सोसाइटी जो एयर कंडीशन ऑफिस में, अभी जिया साहब बैठे हुए थे, वो रुमाल से अपना पसीना साफ कर रहे थे। वो जो एयर कंडीशन कमरों में बैठे हुए हैं, जिया साहब को या शफीक साहब को या हम जैसे लोगों को क्या समझते हैं? वो कुछ नहीं समझते हमें। लेकिन मेरे ख्याल में पूरी कौम को आगे निकलना चाहिए, स्टेप लेना चाहिए, शोल्डर के साथ शोल्डर मिलाकर निकलना चाहिए, इन बातों को खुद तहकीक करना चाहिए, लकीर के फकीर ना हूं, खामखा पीछे ना लगे। आप बाकायदा देखें कि आया ये बातें वाकई गलत हैं, तो फिर खुदा के लोगों का साथ दीजिए ताकि आइंदा के लिए इस तरह की कोई कड़वी जड़ ना फूटे। और हमारी तमाम तरह की जो खिदमात हैं वो यकीनन हाजिर है, और आइंदा भी हम सीना तान कर खुदा के कलाम के बरखिलाफ होने वाली तमाम बातों का डंके की चोट पर जवाब देंगे। आमीन आमीन। तो आमीन। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त बहुत ज्यादा हुए जा रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं पास्टर जिया साहब को थोड़ा सा मुख्तसर वक्त दूं कि वो अगर कुछ कहना चाहते हैं तो उसके बाद हम प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। मैं सर यही कहना चाहता हूँ कि सारी कौम ने जो जिस तरह से लब्बैक कहा है, और पास्टर हजरात जिस तरह से, और जो पहले से ईमान के दाई हैं वो भी मैदान में आए हैं, और हमें बहुत हौसला मिला है। यकीन जाने कि हमें अंदाज़ा हुआ है कि लोग वाकई ही मसीही जो है वो बात करना चाहते हैं और वो खड़े होंगे। और ये जो खामोशी छाई हुई है, इससे पता चलता है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है कि जिसके लिए इस लोग सब खामोश हैं, और अब कुछ बताना पड़ेगा इन्हें, इस बात को बताना तो इन्हें किसी तरह से पड़ेगा कि ये क्या हुआ है और कैसे हुआ है। तो लिहाजा इसी तरह आप ज़रूर प्रोग्राम अरेंज करते रहें, और भी जो मसाइल हैं हम आपको हाईलाइट करते रहेंगे, और हम आपको बताते रहेंगे कि कोई कमेटी नहीं है। और ये किताबें जो इस तरह की गुस्ताखाना प्रिंट की जाती हैं, वो इससे पहले कि हम तक पहुँचे उन लोगों तक पहुँचती हैं जो इन्हें बेहतर इस्तेमाल करके मसीहत की जड़ों को काटेंगे, जैसे कि इस किताब के सिलसिले में हुआ है। और बाकी वो बात नवीद साहब की बिल्कुल हक है कि हमारे लिए ये उत्तम है, हमारे लिए ये किसी रॉजर की, चाहे वो
इंटरनेशनल बाइबल सोसाइटी का मेंबर हो, चाहे बहुत बड़ा डोनर हो, हमारे लिए उसकी कोई अहमियत नहीं है और हम उसे कुछ नहीं समझते। और इवन के मौजूदा वक्त पर भी अगर कोई बिशप ऑनलाइन है, आई मीन के ओहदे पर मौजूद है, कोई भी बंदा ऐसा, और वो भी कोई ऐसी बात करता है जो बाइबल के खिलाफ है, तो हम उसको नहीं मानेंगे, Of course. चाहे कोई फरिश्ता भी हो। आमीन। आमीन। तो मैं चाहूंगा कि अब इस वक्त हमारे दरमियान मकबूल साहब मौजूद हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं और उसके बाद हम बिल्कुल प्रोग्राम खत्म करेंगे। शुक्रिया निक्सन कि आपने मुझे फिर मौका दिया। मैं तो सबसे पहले तो एक मैं बात करना चाह रहा था कि बाइबल सोसाइटी ने मेरे ख्याल में ये जो बुक्स हैं ये हजारों की तादाद में इसकी प्रिंटिंग करवाई होगी और साफ ज़ाहिर है, हो सकता है कि ऐसा भी हो कि अबलीस उन लोगों के उनमें से बीच कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे अबलीस भी काम ले रहा हो कि वो पैसे के बलबूते पे भी काम कर रहे हो। तो खुदावंद उनको अकल और दनाई दे ताकि वो खुदावंद यीशु मसीह के मैसेज को अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचा सके। और पास्टर ज़िया मसीह साहब, हम एक होता है ना कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ नहीं हैं, हम आपसे आगे हैं, फ्रंट लाइन हम आपसे आगे लग के चलेंगे, क्योंकि जीसस लाइफ टीवी यीशु की जिंदगी है। और हमें बहुत जो है ना, हमारी टीम को भी, हमारे तमाम मेंबरान को भी इस बात पे हमारी दिल आजारी हुई है। तो हम चाहते हैं कि तमाम हमारे साथ और इनके साथ पास्टर ज़िया मसीह के साथ मिलके, पास्टर शफीक कंवल के साथ मिलके और दीगर जो मिलके हैं, सारे मिलके इस हकीकत तक पहुंच के, और जो बाइबल सोसाइटी के लोग हैं वो तो मैं भी मेल करता रहता हूँ, फोन करते रहते हैं, तो वो तो उठाते ही नहीं है, हमें बाइबल की भी जरूरत होती है तो वो तो उठाते ही नहीं है, बात ही नहीं करते। पता नहीं उनके अंदर कौन सी, उनके घरों के अंदर सरिया ढा हुआ है और उस सरिये से हम तो अभी भी ये पसीना पूछ रहे हैं और ये देखो इनको यूज कर रहे हैं। हमारे पास एसी नहीं है, वो एसीओ में बैठते हैं, किसी से मुलाकात नहीं करते, पता नहीं कौन से वो खुदा के खादम है। खादम ऐसे तो नहीं करते, पर खुद हम उनके लिए दुआ गो हैं कि खुदावंद उनको अक्ल और दनाई दे और अक्ल और दनाई के साथ अपने इस कलाम को, खुदा के कलाम को आगे लेके चले और सही दे। जो उनके पास गलतियां हुई हैं वो कौम से माफी भी मांगे और उन बुक्स को मार्केट से वापस मंगवाएं, मार्केट से वापस मंगवा के अपने पास वापस लें, इसलिए कि वो हमारे ईमान के साथ नहीं खेल सकते, हम खेलने नहीं देंगे, अपने ईमान के साथ हम नहीं किसी को खेलने देंगे। और इसके साथ साथ ही पास्टर साहब आप के साथ हैं हम 24 घंटे, जब भी हमें हमारी जरूरत हो, हमारे नंबर आपके पास हैं, हमें उसी टाइम कॉल करें, हम आपके साथ हैं। जी जी, थैंक यू। इसके साथ साथ मैं शुक्रगुजार हूँ कि जैसा कि हमने शुरू से प्रोग्राम में इनके लिए दुआ भी करेंगे कि खुदा इनको और ज्यादा हिम्मत और ताकत दे, क्योंकि ये फ्रंट लाइन जो हमारे पास्टर साहबान है, मैं दिली दुआ करता हूँ कि खुदा इनको और मजीद कसरत से इस्तेमाल करे। और जैसा कि नाज़रीन, ये प्रोग्राम के वसीला से मुझे उम्मीद है कि आप सबने बरकत पाई होगी और मैं चाहता हूँ कि आप इनके साथ स्टैंड हो, क्योंकि ये पूरी मसीही कौम का एक बहुत बड़ा मसाइल है, तो इसको हमें जल्द अज जल्द हल करना है। नाज़रीन, हम इस तरह के प्रोग्राम्स लेकर आइंदा भी आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने तीनों मेहमानों जो इस प्रोग्राम में शरीक हुए और हम सब के लिए बरकत का सबब बने। और नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम सब के लिए दुआ फरमाते रहें, खुदावंद आपको बरकत बख्शे। आमीन। देखते रहे सिर्फ जीसस लाइव टेलीविजन। गॉड ब्लेस। सिर्फ जीसस लाइव टेलीविजन। गॉड ब्लेस।